Good afternoon, one and all present here. I am Tamkar Garewal, the member of IIC Lingyas Vidyapeeth. Today, we all are gathered here to talk about on the topic process of innovation development, technology readiness level, commercialization of lab technologies and tech transfer. And to make this session more interesting, we have our eminent guest, Mr. Ravi Pratap Singh, founder of Pratap Pharma Private Limited. Now, let's talk about IIC. In the year 2018, the Ministry of Education through MOES Innovation Cell launched the Institution Innovation Cell program in the collaboration with AICT for higher educational institution to systematically foster the culture of innovation and startup ecosystem in education institution. Primarily, IIC role is to engage large number of faculty, students and staff in various innovation and entrepreneurship related activities such as ideation, problem solving, proof of concept development, design thinking, IPR, project handling and management at pre-incubation, incubation stage, etc. so that the innovation and entrepreneurship ecosystem get established and stabilized in higher education institutions. Now, let's talk about our university, Lingyas Vidyapeeth. Lingyas Vidyapeeth is a renowned educational institution dedicated to nurturing young minds and empowering them with knowledge, skills and values. Established in the year 1998, our institution has a rich history of academic excellence and our commitment to fostering holistic development in students. The journey of Lingyas Vidyapeeth began with a vision to provide quality education and contribute to social advancement by producing leaders, innovators and responsible citizens. Over the years, we have grown into a comprehensive university offering a wide range of undergraduate, postgraduate and doctoral programs across various disciplines. Now, I would like to call our guest on the dais. Please, sir, I honor welcome you. Good afternoon, everyone. My name is Ravi Pratap Singh, and I am founder of Pratap Pharmaceuticals. First of all, I am very thankful for Lingyas Vidyapeeth for providing me this opportunity to provide a guest lecture on technology transfer. When we talk about technology transfer, can anyone tell me what is it? Any guesses? जब हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करते हैं तो दो टर्म यूज होते हैं, एक तो टेक्नोलॉजी और दूसरा ट्रांसफर। मतलब टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होगा कहीं ना कहीं, और अगर टेक्नोलॉजी आ रही है तो वो कैसे डेवलप हुई है। अगर हम फार्मा की बात करें तो फार्मास्यूटिकल कंपनी में पहले लैब स्केल में या फिर स्मॉल स्केल में हम किसी भी ड्रग को या फॉर्मुलेशन को डेवलप करते हैं और बाद में उसे स्केल अप बैच में बेचते हैं। बट इसके बीच की एक प्रोसेस होती है जिसे बोलते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। अब ये क्यों जरूरी है? अगर इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हम बनाते हैं 10 लाख टैबलेट के बैच, 10,000 लीटर के सिरप्स के बैच, सस्पेंशन के बैच, और अगर ये फेल हो जाए तो कितना बड़ा रिस्क है। जब हम R&D की बात करते हैं तो 1 लीटर, 2 लीटर, 10 लीटर के स्केल अप बैच बनते हैं, और अगर हमारा लॉस हो रहा है तो 1 लीटर 2 लीटर का ज्यादा होगा या 10,000 लीटर का। इस वजह से हम क्या करते हैं, पहले लेबोरेटरी लेवल पे अपनी फॉर्मुलेशन डेवलप करते हैं, उसे ऑप्टिमाइज करते हैं, अलग अलग फैक्टर्स के बेस में ऑप्टिमाइज करते हैं। डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हम वो एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन करते हैं और उसके बाद उसे फर्दर स्केल अप के लिए बेचते हैं, और इस बीच में आता है टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर का काम। अगर फार्मास्यूटिकल की बात किया जाए तो यहां पे क्या है, रिस्क की दिक्कत ज्यादा होती है। थैलिडामाइड ट्रेजेडी का नाम अगर आप लोगों ने किसी ने सुना हो तो उसमें क्या हुआ था, यूएसए में
एक सिरप बेची गई जिसमें कई बच्चों की जान चली गई, और इसका रिस्पॉन्सिबल कौन था? इसकी रिस्पॉन्सिबल फार्मास्यूटिकल कंपनी थी जिन्होंने यूज किया। बट वहां से गवर्नमेंट को एक चीज समझ में आई कि हमें रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, और तब से यूएस एफडीए अपने एक्शन में आई। उसकी 3 गाइडलाइन है, सेफ्टी, एफिकेसी और क्वालिटी। इन तीनों को प्राइमरी रूप में उन्होंने आगे किया। इंडिया में यही रोल सिडिस्को का है, और सिडिस्को ये चीजें रेगुलेट करती है, गवर्नमेंटल बॉडी है, तो जाहिर सी बात है उसका अपना एक रोल होगा, वो रेगुलेट करती है। तो 3 पैरामीटर्स देखते हैं हम। एक तो जो भी हमारी फॉर्मुलेशन या ड्रग है वो किसी भी पेशेंट के लिए सेफ हो, उसके लिए कलेक्टिव डेटा जाता है रिसर्च का, जैसे कि क्लिनिकल ट्रायल्स का डेटा, हमारी फॉर्मुलेशन डेवलप हुई है उसका डेटा, और इसके अलावा कि हमने क्लिनिकल तो बहुत बाद की स्टेज है, पहले उससे आता है प्री क्लिनिकल टेस्टिंग जिसमें हम एनिमल्स के ऊपर टेस्टिंग करते हैं, तो उसका डेटा जाएगा, और इसके थ्रू ड्रग एक अप्रूवल प्रोसेस को, पूरे प्रोसेस को क्लियर करके तब जाके वो मार्केट में आती है। और मार्केट में आने के बाद भी पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस होता है, जिसमें आती है एडवर्स ड्रग रिएक्शन की रिपोर्ट बनानी, जिसे हम फार्माकोविजिलेंस बोलते हैं। तो इसलिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो है वो स्केल अप बैच को फेल ना हो या फिर बड़े लेवल पे लॉस ना हो, इसलिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है। इनके कई काम होते हैं, फॉर एग्जांपल मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड बनाना, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए काम आता है। अब कई टर्म्स होंगे जिससे आप फेमिलियर नहीं हो सकते या नहीं है, तो जैसे कि बॉम्ब, बिल ऑफ मटेरियल्स। तो अगर हम हायरार्की की बात करें तो लेबोरेटरी लेवल पे पहले हमने कोई ड्रग डिस्कवर करी, मान लो कोई मॉलिक्यूल है या पैरासिटामोल कॉमन मॉलिक्यूल है, अब उसी का कोई नया वेरिएंट हमने डेवलप किया, तो उसका एक रैशनल होना चाहिए कि वो क्यों डेवलप किया जा रहा है। अगर उसकी टॉक्सिसिटी ज्यादा है तो फिर वो किसी काम का नहीं है। तो इसलिए हम हर पॉइंट ऑफ व्यू से उसका रैशनल देखेंगे कि क्या इफेक्ट है उसका, बॉडी में क्या इफेक्ट आ रहा है, मॉलिक्यूल का बाइंडर से बाइंड हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, क्वालिटी उसकी कैसी है, ऐसे कैसा आ रहा है, 90% आ रहा है, 100% आ रहा है, इम्प्योरिटीज तो नहीं आ रही। फिर उसके बाद कॉस्ट देखेंगे, सबसे बड़ी चीज, क्योंकि इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट रिडक्शन भी एक अपने आप में बहुत बड़ी R&D का पार्ट है। पर कॉस्ट रिडक्शन के टाइम पे हमें ये नहीं करना कभी भी कि हम क्वालिटी या सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज कर लें। तो इसके हर एक पैरामीटर होते हैं। अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का रोल यहाँ पे ये रहता है कि फॉर एग्जांपल कोई स्मॉल स्केल में हमने बैच डेवलप किया, उसका एक फार्मूला डेवलप किया कि उसमें कुछ अमाउंट ऑफ एक्सिपिएंट्स जाएंगे, ड्रग जो है वो स्पेसिफाइड रहेगी, उनका रेशियो रहेगा परसेंटेज में, तो उसके बेस पे वैलिडेशन बैच डेवलप होंगे। ऐसा नहीं कि पहले 1 लीटर का बनाया फिर सीधे 10,000 लीटर का बना लिया, पहले 10 लीटर का बनाकर देखेंगे। और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इनिशियल 3 बैच वैलिडेशन बैच होते हैं, जिसे हम डेवलप करते हैं और उसकी पूरी क्वालिटी टेस्टिंग करते हैं। फिर उसके बाद वो स्टेबिलिटी स्टडीज के लिए जाता है, उसके बाद उसकी शेल्फ लाइफ कैलकुलेट होकर आती है, और उसके बेस पे हम उसकी एक्सपायरी डेट भी डिसाइड करते हैं। तो ये सारी पैरामीटर्स हैं। अगर कोई ड्रग है और वो न्यू मॉलिक्यूल है, जो मतलब वो पहले नहीं आया कभी भी मार्केट में, तो फिर उसकी सेफ्टी स्टडीज करनी पड़ेगी, टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज करनी पड़ेगी। टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज जो है वो कभी भी ह्यूमंस पे के ऊपर नहीं करी जा सकती एज पर द गाइडलाइंस, तो वो प्री क्लिनिकल टेस्टिंग्स में आएगी, और वो हम एनिमल्स के ऊपर करते हैं। इसमें अलग अलग टाइप के टेस्ट कर सकते हैं। अगर प्री क्लिनिकल स्टेज में जो हमारी ड्रग है वो पास हो गई है या मॉलिक्यूल पास हो गया है, तो उसे क्लिनिकल अप्रूवल के लिए हमें रेगुलेटरी अप्रूवल लेना पड़ेगा, जिसमें NDA फाइलिंग कर सकते हैं, न्यू ड्रग एप्लीकेशन। न्यू ड्रग एप्लीकेशन के बाद
ये कई स्टेजेस में होता है न्यू ड्रग एप्लीकेशन। पहले क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट करने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। क्लिनिकल ट्रायल की परमिशन के बाद वो अप्रूवल हुआ, उसके बाद हम ऐसा नहीं कर सकते कि एकदम से क्लिनिकल ट्रायल कर दिया। पहले 100 पेशेंट्स में करेंगे, फिर मल्टीपल 100 पेशेंट्स पे करेंगे, अलग अलग लोकेशन के हिसाब से करेंगे। और जब ये सारी चीजें होती जाएंगी तो उसके साथ हम कलेक्टिवली FDA को डेटा भी सेंड करते रहते हैं। जब हमारा डेटा पूरी तरीके से सबमिट हो जाता है तो फिर FDA उस डेटा को चेक करता है और उसके बेस पे अप्रूवल या तो वो देता है या डिनाई कर देता है। बट अदर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो सिर्फ अप्रूवल लेना काम नहीं है, हमें अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करना भी जरूरी है। और वो कैसे कर सकते हैं? अलग अलग टाइप की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे कि कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इसके अलावा पेटेंट, फिर ट्रेड सीक्रेट होता है। ट्रेड सीक्रेट का तो ऐसा है कि वो जब तक डिस्क्लोज ना किया जाए तब तक वो चलता रहेगा। कॉपीराइट हमेशा रिटन चीजों के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर की कोडिंग हुई है, वो रिटन फॉर्म में है, तो उसका कॉपीराइट होगा। लिरिक्स है, बुक्स हैं, इनका होता है कॉपीराइट। पेटेंट्स हम टेक्नोलॉजी के केस में करते हैं, डिजाइन पेटेंट करते हैं। और पेटेंट के साथ सबसे खास बात यह है कि पेटेंट में जो चीजें इंक्लूड नहीं की गई है वो सारी पेटेंटेबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक डस्टर है, जैसे कि ये अगर ये डस्टर पेटेंट किया हुआ है और इसमें ये लिखा हुआ है कि ये क्यूबॉइडल शेप का होगा, तो स्फेरिकल शेप का डस्टर पेटेंट करना पॉसिबल है। ये लूपहोल्स होते हैं पेटेंट के। और इन्हीं चीजों को डील करने के लिए इंडस्ट्री जो है वो हमेशा अलग अलग डिपार्टमेंट्स रखती है। फॉर एग्जाम्पल बेसिकली किसी भी इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अलग अलग टाइप के डिपार्टमेंट होंगे। जैसे कि एक तो प्रोडक्शन हो गया, अब ड्रग मैन्युफैक्चर हो रही है तो उसके लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लगेगा हमें। प्रोडक्शन के बाद क्वालिटी कंट्रोल, जो भी हमारा प्रोडक्ट बनाए उसकी हमेशा टेस्टिंग होगी और वो विद इन लिमिट्स अगर फेल कर रहा है तो फिर वो पूरा बैच डिस्कार्ड होगा, इसलिए क्वालिटी कंट्रोल होगी। क्वालिटी एश्योरेंस होगी, जो कि ये पॉलिसीज पूरी की पूरी इंप्लीमेंट कराए, डॉक्यूमेंटेशन का पूरा काम क्वालिटी एश्योरेंस देखेगी। इसके अलावा होगी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो कि प्रोडक्ट डेवलप करेगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जब कोई भी प्रोडक्ट स्केल अप होकर प्रोडक्शन वालों को हैंडओवर किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग वालों को हैंडओवर किया जाता है, इसके बीच का काम होता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का, जिसमें वो पहले तो ट्रायल बैचेस लेंगे, फिर उसके बाद उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करेंगे कि जो हमारा प्रोसेस है उसको वैलिडेट करेंगे। हर बार अलग अलग एक्सपेरिमेंट लगाकर फॉर्मूला को वैलिडेट करेंगे, वो स्केल अप में आ पा रहा है, पॉसिबल है नहीं है, उससे रिलेटेड क्या दिक्कतें आ रही हैं वो देखेंगे। कॉस्ट देखेंगे, प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी आ रही है, जिसमें बिल ऑफ मटेरियल आएगा और वो उस बिल ऑफ मटेरियल के बेस पे, कैलकुलेशन के बेस पे प्रोडक्ट की कॉस्ट एस्टिमेशन होगी। फिर उसके बाद वो फर्दर हैंडओवर होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। और जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि प्रोडक्शन में अगर कोई भी फॉर्मुलेशन आई है, मैन्युफैक्चरिंग वालों को हैंडओवर की गई है, तो वो इनिशियल 3 बैच वैलिडेशन के होंगे, मार्केटिंग के लिए नहीं होंगे। उन 3 बैचेस की वैलिडेशन होगी, उनकी टेस्टिंग होगी और वो फिर डिस्कार्ड कर दिए जाएंगे और उन्हीं बैच की स्टेबिलिटी टेस्टिंग करी जाएगी। मीनवाइल अगर वो 3 बैच सक्सेसफुल हो गए तो चौथा बैच जो है वो मार्केट में डिस्पैच कर दिया जाएगा।
मार्केट में डिस्पैच करने के बाद स्टेबिलिटी टेस्टिंग जो होती है हमारी वो चलती रहेंगी, और जैसे जैसे उनके रिजल्ट्स आते रहेंगे वैसे वैसे हम प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ और उसकी एक्सपायरी डेट जो है वो डिसाइड करते हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अपने आप में बहुत वास्ट डिपार्टमेंट है और इसमें कई चीजें अभी इंप्लीमेंट होना बाकी है। जैसे कि कई बार फॉर्मुलेशन जो डेवलप हुई है वो फेल कर जाती है स्केल अप लेवल पे, उसको कैसे हम एरर को रेक्टिफाई कर सकते हैं, कैसे हम सारे जो हमारे क्रिटिकल एट्रीब्यूट्स हैं उनको कैसे रेक्टिफाई करेंगे। इसमें कई सारे पैरामीटर्स होते हैं और स्टैटिस्टिकली हम लोग इसको चेक करते हैं कि कहाँ कहाँ एरर आ सकता है। एंड वी शुड ऑलवेज रिलाई ऑन द डेटा, जो हमारे डेटा आ रहा है, रिसर्च का डेटा आ रहा है, क्या वो रिप्रोड्यूसिबल है या नहीं है। कई बार क्या होता है कि रिजल्ट्स एकदम से आ जाते हैं और बाद में उन्हें उन्हीं फॉर्मुलेशन को या उन्हीं प्रोसेस को रिपीट करो तो वो नहीं आता। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है। इसीलिए हम लोग हमेशा कभी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में रिपीटेबिलिटी को ज़्यादा करते हैं कि हमारा डेटा जो है जितना प्रिसाइज हो उतना अच्छा है। कई और चीजें देखी जा सकती है फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि अप्रूवल को लेकर रेगुलेटरी डिपार्टमेंट होता है। अब ये उनका काम है कि रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हम अपने डॉक्यूमेंटेशन करें जिससे वो पास आउट हो जाए, अप्रूवल मिल जाए ड्रग्स का रेगुलेटरी बॉडीज से। इसमें कई रेगुलेटरी बॉडीज होती है, जैसे कि यूएसए के लिए यूएस एफडीए, ऑस्ट्रेलिया की रेगुलेटरी बॉडी जो है ड्रग एंड कंट्रोल की वो टीजीए है। उसके बाद यूरोप के लिए ईयू जीएमपी अप्रूवल देती है और हमारे इंडिया में सीडिस्को है, सीडीएससीओ, सेंट्रल ऑफ ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इनकी अपनी अपनी गाइडलाइंस होती हैं। इनके अलावा वर्ल्ड लेवल पे WHO जीएमपी फॉलो करती हैं बहुत सारी इंडस्ट्रीज। WHO जीएमपी के बाद हम लोग ICH गाइडलाइंस भी फॉलो करते हैं। ICH गाइडलाइंस जो है हमें कई टाइप्स की रिसर्च में गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है, क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी को लेकर। और उसके बाद मिसलेनियस गाइडलाइंस भी होती हैं। अगर हम कह रहे हैं कि हमें कोई टेस्टिंग भी करनी है तो वो कैसे करनी है, क्यों करनी है, उसकी एक रैशनल डिफाइन होगी, या कैसे हम उसे प्रोग्राम कर सकते हैं, कैसे हम उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये गाइडलाइंस हमें उसमें हेल्प करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई स्टडी कर रहे हैं ड्रग और एक्सीपिएंट की, तो उसमें हमारा ड्रग का रेशियो कितना होना चाहिए, एक्सीपिएंट का रेशियो कितना होना चाहिए, और यही चीजें हमें रिसर्च में हमेशा हेल्प करती हैं। तो इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा जो जितने भी ये पैरामीटर्स हैं, टेक ट्रांसफर की पूरी कोशिश यही रहती है कि वो उसे कवर करके रखे या कोई भी चीज छूटे ना। अगर इन केस अगर स्टार्टिंग में R&D से कोई गलती हो रही है तो वो टेक ट्रांसफर में रेक्टिफाई हो जाए। अगर वो रेक्टिफाई नहीं हो रही है तो आगे जाके ब्लेंडर हो सकता है। तो इसलिए हम 3 वैलिडेशन बैच देखते हैं कि मार्केट में कभी भी हमें ड्रग रिकॉल का सामना ना करना पड़े। तो ये कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के रोल्स हैं जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। तो यहीं पे मैं कंक्लूड करना चाहूँगा। सर, वो आपने बताया था टेक ट्रांसफ़र का कि जब अपना कोविड टाइम आया था तो नॉर्मली पीपल्स आर बिलीविंग अबाउट दैट कालपोल मेडिसिन आती है जी। तो उसमें जो फॉर्मूला होता है वो 300 mg का होता है, 350 या 300। सो उसमें सर किस तरीके से टेक ट्रांसफ़र उस समय लिया गया, क्योंकि इट्स अ वेरी फास्ट फिनोमेना, क्योंकि उस समय बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। तो उस समय फार्मास्यूटिकल्स ने किस तरीके से डिसीजंस लिए होंगे, बिकॉज उस समय तो टाइम भी नहीं था कि प्री क्लिनिकल रिसर्च हो सके।
तो हाउ कैन बी, क्योंकि उसी समय डोलो 650 उन्होंने बनाई थी कि ये कोविड के लिए अगर बुखार आ रहा है तो उसके लिए करें, तो क्या प्रोसेस रहा होगा और इतनी जल्दी किस तरीके से प्रोसेस हो, क्योंकि क्लिनिकल के लिए तो टाइम ही नहीं था बिल्कुल। बिल्कुल, कभी भी जैसे क्लिनिकल स्टडीज जो होती हैं वो ह्यूमंस में होती है, और अगर हम टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज की बात करें तो वो ह्यूमंस में नहीं होगी, वो होगी प्री क्लिनिकल स्टडीज में, एनिमल्स के ऊपर होगी, जैसे कि रैट्स हो जाते हैं, मंकीज हो जाते हैं, इनके ऊपर स्टडीज से ये होता है कि टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज का जो डेटा है ना वो एक बार जनरेट हो गया तो वो हो गया और वो अवेलेबल रहता है। पैरासीटामोल का केस ये था डोलो 650 का कि वो पहले से मार्केट में अवेलेबल थी, उसका पूरा डेटा अवेलेबल था। ये लूप होल जो था इसका वो रेगुलेटरी लेवल पे था, इसका कुछ R&D से लेना देना ज़्यादा था नहीं, तो रेगुलेटरी अप्रूवल जो था वो इसका पहले 500 mg तक का था, तो इसका इन्होंने एक्सटेंड करा के 650 mg ले लिया अप्रूवल, और सारा जो रिसर्च का पुराना डेटा है वो सबमिट कर दिया। इससे ये होता है कि अप्रूवल मिल गया, अब मार्केट में अकेले कॉम्पिटिटर थे, और उस टाइम पे डोलो के साथ नेगेटिव मार्केटिंग का भी केस बहुत अच्छा हुआ कि जब न्यूज़ चैनल्स ने इसे चलाया तो ये बोलकर चलाया कि ये जो ड्रग है ये डॉक्टर ज़बरदस्ती प्रिस्क्राइब कर रहे हैं बट ये इफेक्टिव भी है, तो इफेक्टिव जहाँ लग जाता है वहाँ पे इसकी नेगेटिव मार्केटिंग हो गई। और ये लूप होल बहुत अच्छा निकला था कि रेगुलेटरी लेवल पे अगर ऐसी चीज़ें, ये जो छोटे छोटे लूप होल्स होते हैं यही डिफाइन करते हैं कि कोई इंडस्ट्री कितना ज़्यादा ग्रो कर सकती है, और इसी के बेस पे फर्दर अप्लाई किया। उनका जो अप्रूवल का तरीका था वो पूरा सही था, पूरा डेटा उनके पास अच्छा खासा रिसर्च का बना हुआ था, तो इसलिए उन्होंने डोज एक्सटेंड करा दी। दूसरी चीज़ पैरासीटामोल के साथ ये दिक्कत आ रही थी कि रेजिस्टेंस का नाम सुना या टॉलरेंस का नाम सुना है आप में से किसी ने? सर तो जब हम माइक्रोब्स की बात करते हैं तो उनके अंदर रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, और जब हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो हम टॉलरेंस यूज़ करते हैं वर्ड। तो क्या होता है कि हम काफ़ी टाइम से पैरासीटामोल से एक्सपोज हो रहे थे, बचपन से यूज़ कर रहे हैं पैरासीटामोल, हल्की सी बुखार होती है तो यूज़ कर लेते हैं, तो धीरे धीरे हमारी बॉडी जो है वो उसके मॉलिक्यूल के अगेंस्ट टॉलरेंस डेवलप कर लेती है, जिसके वजह से जो हमारी ड्रग है उसकी एफिकेसी कम हो जाती है, और जब एफिकेसी कम हो जाती है तो फिर हमें हायर डोज की तरफ मूव ऑन करना पड़ता है। तो डोलो के साथ ये केस था कि बहुत सही टाइम पे उन्हें रेगुलेटरी अप्रूवल मिला, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत अच्छा ग्रो कर लिया। और कोई से क्वेश्चंस? अगर सर कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में अगर ट्रांसफरी कंपनी अगर मिसयूज करती है तो क्या टेक ट्रांसफ़र या ये ख़त्म किया जा सकता है कि अब आप यूज़ नहीं कर सकते इसको, या ये कुछ अदर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पे या उस तरीके से? नहीं सर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जैसी कंपनियां, मतलब टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ना स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल में है, तो उसमें उनका डेटा वगैरह जो है वो ज़्यादा फ्लक्चुएट करता नहीं है। फ्लक्चुएट ऐसे नहीं करता क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का ट्रांसफ़र हो रहा है, या तो कई बार क्या होता है कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में हो रहा है, और कई बार क्या होता है कि मान लो मैंने टेक्नोलॉजी डेवलप करी, सर को चाहिए तो सर वो चाह रहे हैं अपने पास, तो उनकी कंपनी का टेक ट्रांसफर डिपार्टमेंट वो ट्रांसफर कराएगा। अगर उसके बाद ट्रांसफर होने के बाद वो मॉलिक्यूल फेल हो रहा है या स्केल अप लेवल पे जाके फेल हो रहा है, तो डिपार्टमेंट हम बंद नहीं कर सकते, हम उसमें कापा ले सकते हैं, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन, कि वो किस वजह से फेल हो रहा है। अब अगर डेटा इंटीग्रिटी के अगेंस्ट जा रहे हैं, मतलब हम गलत डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फिर उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है, जो कि चलते हैं एज पर इंडियन गवर्नमेंट लॉज, या फिर मतलब जिस भी देश में है हम, तो वो उसके अकॉर्डिंग आता है। और कोई एनी क्वेश्चन? नो सर। सर
जैसे कि इफ़ वी टेक एग्जांपल ऑफ डिफेंस, अगर हम डिफेंस का एग्जांपल लेते हैं जी, या फिर हम कंपनीज का एग्जांपल लेते हैं जो सॉफ्टवेयर में डील करती है, इफ़ वी कंपेयर कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री जो है यानी कि जो डेवलप्ड नेशन है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने को बहुत झिझकती है जब डेवलपिंग नेशन की बात आती है, बट कोई डेवलपिंग नेशन जो है वो बहुत जल्दी ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का ये आर्गुमेंट लेके वो कोशिश करते हैं कि उस टेक्नोलॉजी को डेवलपिंग नेशन से डेवलप नेशंस में लाया जाए। तो सर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आप क्या ट्रेंड देखते हैं इसके रिलेटेड कि डेवलप्ड नेशन और डेवलपिंग नेशन के बीच में क्या रेशियो चल रहा है, कि क्या यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है डेवलप्ड नेशन से डेवलपिंग नेशन में या फिर नहीं हो रहा है या वाइस वर्सा? सर क्या आपका क्या सर देखिए सर, रिसर्च की अगर हम बात करें तो रिसर्च में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। उसके बाद जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके पास क्या फैसिलिटीज़ हैं। फार्मा में रिसर्च की बात अगर करें तो ये काफ़ी क्रिटिकल है, क्योंकि अगर क्लिनिकल ट्रायल पे बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी आ रही है ड्रग की तो वो पेशेंट्स के लिए रिस्की है। कई बार क्या होता है, कुछ डेवलपिंग नेशंस में इतने स्ट्रॉन्ग लॉज नहीं होते जिनके वजह से कई मॉलिक्यूल्स इजीली बाईपास कर जाते हैं पूरे प्रोसेस को और बाद में ब्लेंडर होता है। तो इस वजह से कई बार चीज़ें थोड़ी डामाडोल हो जाती हैं। पर अगर हम ये देखें कि डेवलपिंग कंट्रीज फार्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रही हैं अपना, इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया ने फार्मा में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करी है। और R&D की बात किया जाए तो इंडिया अभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसके अलावा इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा है। तो कई बार जो है डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो आउटसोर्स करती हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंडिया में सिर्फ सिडिस्को का अप्रूवल नहीं लेते, UGMP का लेंगे यूरोप में सप्लाई करने के लिए अपनी ड्रग्स, USFDA का अप्रूवल लेंगे, उनके अकॉर्डिंग कंप्लाइंस बैठाएंगे कि उनकी क्या चेकलिस्ट है, उसके अकॉर्डिंग अपनी इंडस्ट्री अपने प्लांट को डेवलप करेंगे, पूरी गाइडलाइंस फॉलो करेंगे और फिर वहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये बिजनेस के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। फार्मा तो बहुत आगे है इसमें, इंडिया मेजर एक्सपोर्टिंग कंट्री है वर्ल्ड में। इसके अलावा अगर हम देखें R&D में, तो R&D में भी अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि फॉर्मुलेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एनालिटिकल डेवलपमेंट। इनका काम क्या होता है, जब हम ड्रग की बात करते हैं तो ड्रग सिर्फ एक मॉलिक्यूल है जिसकी एक फार्मास्यूटिकल एक्टिविटी है या फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है बॉडी के अंदर। बट जब हम इसे डोसेज फॉर्म में या टैबलेट के फॉर्म में डेवलप करते हैं या सिरप सस्पेंशन किसी डोसेज फॉर्म में डेवलप करेंगे तो फॉर्मुलेशन का काम आएगा कि हम उस मॉलिक्यूल को कैसे एक डोसेज फॉर्म में डिलीवर कर पा रहे हैं। और डोसेज फॉर्म के भी अपने अपने बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस होती है, एप्लीकेशंस होती है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी पेशेंट की अनकॉन्शियस में है तो क्या हम उसे टैबलेट खिला पाएंगे? अगर कोई पेशेंट बेहोश है तो क्या हम उसे टैबलेट खिला पाएंगे? नहीं। फिर हम पेरेंटरल्स की तरफ जाएंगे, हम इंजेक्टेबल्स की तरफ जाएंगे। तो यही है कि हम इसी तरह से इसे डेवलप करते हैं कि पेशेंट पे या मार्केट में क्या नीड है इसकी। थैंक यू, दैट्स ऑल। Thank you so much, sir, for delivering such an informative session on process of innovation development, technology readiness level. Such a grateful session with you, sir, and inspire. Thank you so much for inspiring us. Welcome. I hope we met again for again session. Thank you, sir.